Dear friend, students, you are welcome in the third period of Standard 9, Maths 2. Topic is parallel lines. In this period, we discuss about test of parallel lines. Test of parallel lines. Consider these two lines. And this is the transversal line L, M, N, and due to the transversal N, at point of intersection, 8 angles are formed: angle A, B, C, D, E, F, G, and H. There are 4 pair of corresponding angles: angle A, E, B, F, D, H, C, G. 2 pair of interior angles: angle B, E, C, H, and 2 pair of alternate angle: angle B, angle H, angle C, angle E. Then test for parallel lines. Number 1. If one of the pair of interior angles is supplementary, then lines are parallel. मतलब कोई interior angle से वाले एंगल ये कैसे हो supplementary, ये lines हो जाएगी parallel. If one of the pair of interior angles is supplementary, then the lines are parallel. That is, if angle B plus angle E equal to 180 or angle C plus angle H equal to 180 degrees, then line L parallel line M. तभी line L और M कैसे हो जाएगी parallel. Second, if one of the pair of corresponding angle is congruent, मतलब ये पेयर मान के चलो एंगल A के congruent एंगल E, या तो B के congruent F, या तो D के congruent H, या तो C के congruent G, तो ये दोनों लाइन्स हो जाएगी पैरेलल. If one of the pair of corresponding angle is congruent, then the lines are parallel. That is, if angle A congruent angle E or angle B congruent angle F or angle D congruent angle H or angle C congruent angle G, then तब क्या हो जाएगा लाइन L पैरेलल लाइन M. यानी कोई भी एक पेयर यदि कॉन्ग्रुएंट है करस्पॉन्डिंग एंगल की लाइन्स हो जाती है पैरेलल. थर्ड, alternate angle. If one of the pair of alternate angle is congruent, then lines are parallel. If one of the pair of alternate angles is congruent, then the lines are parallel. Then the lines are parallel. That is, if angle B congruent angle H, angle B congruent angle H or angle C congruent angle E, then line L
पैरेलल लाइन एन। तो अभी आपने जो टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस देखे कि इंटर एंगल्स यदि सप्लीमेंट्री है तो लाइंस पैरेलल होती है, यदि करस्पॉन्डिंग एंगल की एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल होती है, या अल्टरनेट एंगल की कोई एक पेयर यदि कॉन्ग्रुएंट है लाइन पैरेलल होती है। इन्हीं टेस्ट को अपन थ्योरम के रूप में पढ़ेंगे, उसका प्रूफ पढ़ेंगे। तो इंटीग्रल एंगल टेस्ट क्या लिखा है? थ्योरम, if the inter angles formed by a transversal of two distinct lines are supplementary, then the two lines are parallel। तो अपन टेस्ट पढ़ चुके हैं, वही टेस्ट है यहाँ पे, इसको अपने को प्रूव करना है। आंसर यहाँ पे ये थ्योरम को given to prove इस पार्ट में लिखेंगे। तो क्या लिया है? If the inter angles formed by a transversal of two distinct lines, यानी यहाँ पे दो लाइन है, उसकी ट्रांसवर्सल है, और जो इंटर एंगल है कैसे हैं? आर सप्लीमेंट्री, इतना दिया है। देन दी टू लाइन पैरेलल, तो दो लाइन पैरेलल है, अपने को प्रूव करना है। तो देखो क्या करते हैं अपन, एक लाइन, ये दूसरी लाइन, और ये उसकी ट्रांसवर्सल, मतलब लाइन ए बी सी डी, और ये ट्रांसवर्सल मान लेते अपन पी क्यू, जो पॉइंट एक्स और वाई पे इंटरसेक्ट करती है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक है, तो गिवन क्या लिखेंगे अपन? लाइन पी क्यू is the transversal of two distinct line AB and line CD. Given. Line PQ is a transversal of two distinct lines, comma, line AB and line CD। AB और CD क्या है? ये ट्रांसफर है PQ। एंड और क्या है? जो इंटर एंगल कौन से वाले? मान लो ये वाले एंगल्स, एंगल BXY, एंगल BXY and angle XYD are supplementary. That is, angle BXY plus angle XYD equal to 180 डिग्री। दोनों का सम कितना है? 180, सप्लीमेंट्री है। BXY और XYD, BXY और XYD ये दिया हुआ है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को? दोनों लाइन पैरेलल है, लाइन AB पैरेलल लाइन CD। प्रूफ, इस प्रूफ को अपन इनडायरेक्ट मेथड से प्रूफ करेंगे। इनडायरेक्ट मतलब अपना प्रूफ क्या करना है? ये लाइंस पैरेलल है, तो ये मान के चलते लाइंस पैरेलल नहीं है। वी प्रूव दिस थ्योरम बाय indirect method. Let's assume that मान के चलते हैं लाइन AB and line CD are not मान के चलते कि लाइन AB और लाइन CD पैरेलल नहीं। अब पैरेलल नहीं तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, मान लो आगे करेगी या पीछे करेगी, तो ये मान के चलते आगे इंटरसेक्ट करती है।
Therefore, line AB and line CD will intersect each other. Let point E be their point of intersection. As shown in figure. तो अपन इसे फिगर बना लेते हैं। क्या होगा, देखो इस तरह हो जाएगा। ये लाइन AB और ये लाइन CD और ये इनकी ट्रांसवर्सल। कौन सी ट्रांसवर्सल? PQ। ये P, ये Q, ये A और ये B, ये C, ये D और एक पॉइंट E पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट X और ये पॉइंट Y। X और Y, ये X पॉइंट X, ये पॉइंट Y। ठीक है। अब देखिए ये लाइन इंटरसेक्ट होने की वजह से ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल? XYE। XYE। Therefore, in triangle XYE और इससे पहले पर पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। क्या आएगा? ये वाला एंगल XYE, एंगल XYE प्लस एंगल YEX प्लस एंगल EXY इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री सम ऑफ measure of angles of a triangle। ट्रायंगल के एंगल के मेजर का सम। अभी जो नाम है अपन, जो नाम दिए XYE, इसे लिखेंगे अपन XYD। XYD that is एंगल XYD प्लस ये वाला एंगल YEX, इसे रहने दो, YEX प्लस एंगल ये जो है EXY। क्या है? EXY। सो लिखेंगे अपन BXY, ये वाला BXY, एंगल BXY इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल XYD प्लस एंगल BXY प्लस एंगल YEX इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो एंगल ये वाला XYD और BXY ये कितना दिया है? 180। ये आएगा 180 डिग्री प्लस एंगल YX इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है? एंगल XYD प्लस एंगल BXY इक्वल टू 180 डिग्री है E1। Therefore, एंगल YEX इक्वल टू 180 माइनस 180 इक्वल टू 0 डिग्री। कितना रहा है? 0 डिग्री। कौन सा एंगल? YEX
ई एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो एंगल है वाई ई एक्स 120 मतलब ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, कोइंसाइड होगी। दैट मीन्स लाइन XC and Y, XC and Y will coincide. That is, these lines are not distinct. मतलब ये लाइन अलग अलग एक ही लाइन हो जाएगी। और ये जो लाइन है XC, ये लाइन कौन सी है, AB, और ये जो लाइन है Y, वो लाइन कौन सी है, CD। दैट इज लाइन AB and line CD are not distinct lines। डिस्टिंक्ट लाइन्स नहीं है। देखो XC मतलब कौन सी है, AB, XC मतलब AB, और Y मतलब CD। जब ये लाइन डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये भी लाइन डिस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन दिया क्या है, बट given that line AB and line CD are डिस्टिंक्ट लाइन। ये क्या है, ये दोनों लाइन कैसी है, डिस्टिंक्ट है, AB और CD। क्या है, if the interior angles formed by the transversal of two distinct lines, अपन यहाँ लिखे भी है, लाइन PQ is transversal of two distinct line, लाइन AB and CD, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या आ रहा है, अपन ने जो अज्यूम किए वो कहीं ना कहीं गलत है। Therefore our assumption is wrong। अपना assumption क्या है, गलत है। फिर क्या होगा, लाइंस कैसी हो जाएगी, लाइन AB एंड CD आर नॉट पैरेलल। तो क्या हो जाएगी, लाइन AB एंड CD आर पैरेलल। फिर क्या होगा, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। इस तरह यानी इंटीरियर एंगल की एक पैरेलल सप्लीमेंट्री है तो लाइंस हो जाते हैं पैरेलल। अभी पढ़ेंगे अपन अल्टरनेट एंगल टेस्ट, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। थ्योरम, if a pair of alternate angles formed by a transversal of two lines is congruent, यानी अल्टरनेट एंगल की एक पेयर कैसी है, congruent, then the two lines are parallel। तो वो दो लाइन पैरेलल अपने को प्रूव करना है। तो आंसर इसे अपन गिवन टू प्रूव पार्ट में लिखेंगे। तो दो लाइन, मान लो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, और इसकी ट्रांसवर्सल लाइन मान लो L M N, ठीक है। और अल्टरनेट एंगल कौन से वाले, ये वाले अल्टरनेट एंगल, मान लो ये एंगल ये और एंगल B कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए जीवन में क्या लिखेंगे, लाइन N is a transversal of line L and line M। तो L है लाइन L और M की ट्रांसवर्सल है। एंड एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट एंगल B। ये अल्टरनेट एंगल A और B कैसे है, कॉन्ग्रुएंट। ये दिया है टू प्रूव, आंसर में गिवन। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, लाइन L पैरेलल लाइन M, ये अपने को प्रूव करना है। प्रूफ, लेट अस कंसीडर एंगल C एज शोन इन फिगर। ये वाला एंगल C कंसीडर करते हैं अपन। अब देखिए एंगल A और C क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल
सी इक्वल टू कितना आएगा ये 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लेकिन एंगल ए किसके बराबर है बी के बराबर, बट एंगल ए इज काउंटेड एंगल बी, ये है G1। देखो क्या आएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इस ए की जगह बी रख दिए और बी और सी क्या है 180 है, मतलब बी और सी कौन से एंगल है ये इंटर एंगल्स। देखो क्या हो जाएगा लाइन एल पैरेलल लाइन एम बाय इंटीरियर एंगल एसी, जो अपन थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। तो अपन ये क्या प्रूफ किए लाइन एल और एसी है पैरेलल। दूसरी बात corresponding angle test, क्या बोलता है if a pair of corresponding angle formed by a transversal of two lines is congruent then the two lines are parallel। इसको भी अपन G1 to prove के फॉर्म में लिखते हैं। आंसर क्या देखो दो लाइन, ये एक लाइन ये दूसरी लाइन एल एम और ये लाइन एन इसकी ट्रांसवर्सल। और क्या दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल की एक पेयर मान के चलो ये एंगल ए के बराबर एंगल बी है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखेंगे गिवन में लाइन एन इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड लाइन एन। लाइन एन एल और एन की क्या है ट्रांसवर्सल है। एंड और क्या है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल की एक पेयर कैसी है कॉन्ग्रुएंट। टू प्रूव क्या प्रूव करना आपने को लाइन एल पैरेलल लाइन एन, ये लाइन एल और एम कैसी है पैरेलल है। तो प्रूफ के लिए फिर अपन एंगल सी मान के चलते हैं। जैसे यहां लिखे अपने लेट अस कंसीडर एंगल सी एज शोन इन फिगर। लेट्स कंसीडर एंगल सी एज शोन इन फिगर। देखो एंगल ए और सी दोनों का सम कितना आएगा 180। ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल से एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी मीन्स कॉन्ग्रुएंट। दिस इज G1, therefore इसी की जगह को बी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब देखो बी और सी 180 इंटर एंगल से, therefore लाइन एल पैरेलल लाइन एम बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो अपन तीनों टेस्ट पढ़ चुके हैं। क्या देखे अपन ने यदि इंटर एंगल की एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस हो जाती है पैरेलल। यदि अल्टर एंगल की एक पेयर यदि कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस हो जाती है पैरेलल। और यदि करस्पॉन्डिंग एंगल की एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस हो जाती है पैरेलल। अभी पढ़ेंगे अपन कोरोलरी। कोरोलरी मीन्स सब थ्योरम, प्रमेय को उसका उप प्रमेय जिसे बोलेंगे अपन। क्या है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस इन अ प्लेन, कोई एक लाइन है वह उसी प्लेन में होने वाली दो लाइन के ऊपर कैसी है परपेंडिकुलर, देन दी टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल अपने को प्रूव करना है। तो मान लो ये वाली लाइन जो है ये इस लाइन के ऊपर और ये इस लाइन के ऊपर कैसी है परपेंडिकुलर। लाइन मान लो एन एल और ये एम, लाइन एन एल पे परपेंडिकुलर है, लाइन एल एम पे परपेंडिकुलर है। तो अपने को क्या करना है ये दो लाइंस पैरेलल है। तो आंसर G1 क्या दिया है
line L perpendicular line L and line L perpendicular line तो आंसर में लिखेंगे गिवन क्या है, लाइन N है जो L के ऊपर परपेंडिकुलर है, लाइन N परपेंडिकुलर लाइन L एंड लाइन N परपेंडिकुलर लाइन M, मतलब देखो और लाइन ये वाली लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन, ये दो लाइन पे कैसे परपेंडिकुलर इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में होने लगे, ये दो लाइन के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, देन दी टू लाइंस आर पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल को प्रूव करना है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, लाइन L पैरेलल लाइन M, ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूव करना, प्रूफ बहुत इजी है। देखिए क्या है, दोनों एंगल कैसे हैं, राइट एंगल है, दोनों एंगल कैसे है, राइट एंगल है, मतलब देखो इसका नाम देते हैं ये एंगल बी, लेट एंगल ये इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एज शोन इन फिगर में फिर इसका नाम दे दी ए और बी को। अब देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल कितना है 90 डिग्री, ए के बराबर भी 90, तो देखो देयर पर क्या हो जाएगा, लाइन L विल पैरेलल टू लाइन M बाय corresponding एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों लाइन हो जाएगी पैरेलल, ये अपने को प्रूव करना था। फॉलोइंग टू क्या बोल रहा है, if two lines in a plane are parallel to third line, जैसे दो लाइन है, एक लाइन L दूसरी लाइन M, किससे पैरेलल है, लाइन N से पैरेलल है, N से पैरेलल, तो क्या लिखेंगे देखो, लाइन L पैरेलल लाइन M and line M पैरेलल लाइन N, L लाइन N से पैरेलल है, M लाइन N से पैरेलल है, तो क्या होता है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, L और M दोनों कैसे हो जाती है पैरेलल, ये अपने को याद रखना है। If two lines in a plane are parallel to a third line in a plane, then those two lines are parallel to each other, ये दो लाइन इससे पैरेलल है, ये दोनों लाइन हो जाएगी एक दूसरे से पैरेलल।